Yes, I'm audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll continue further, and we have started with the K map. I have told you K stands for Karnoff map, or that is a method used to simplify the Boolean expression. Okay, so we can either solve the Boolean or simplify the Boolean expression by using truth table. We can simplify by using the truth table. The theorems, the properties. Now today we'll be talking about how do you use this K map. This is a pictorial presentation to solve or simplify the Boolean expression. Okay. So I have told you, if you have two variables, if you have three variables, if you have four variables, then we have a different approach. Okay, approach to solve this. So I will first introduce you with the K map, and then we will see. Okay, then we will proceed. मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? Yes, sir. Okay. Now today's lecture is important. Let me remind you one thing. Whatever I will be taking today, okay, वहां तक सब आने वाला है for your test one. Okay. So today's lecture is also important because there are few questions related with the K map. I think there are 4 to 5 questions are there. So please pay attention in today's lecture. I'll try to complete the portion about the K map जो आपके एग्जाम में important है. So if you have any questions, please ask me and you stop me at the instant जब जो question आपको समझ में नहीं आ रहा. Okay. So in the K map, I have started with the introduction. Now we will see how do you see the two variable K map. So I think you have written the heading as two variable K map. Two variable K map. Two variable K map. Now if you have two variable K map, see there is one variable also, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे because uh, once you understand two variable, three variable, four variable, then you will understand one variable, and that is not part of your that is not in your syllabus also. So we'll directly go to the two variable. So in two variable, I will assume two variables as a and b, as a and b. So if I'm having two variables a and b, your K map will look like this. Pay attention. So this is your K map. This is your K map. Okay. Now here, this is a divider. This is a divider which will divide your variables. Now here I am taking an example of two variables. So these two variables will be seen. You can have a at this side and b at this side, or else you can have a on this side and b on this side. So it is up to you. So there is no harm. There is no harm. Okay. This is a K map which is incomplete. Which is incomplete. Okay. Now as there are two variables, always remember you will be having different number of cells. You will have different number of cells. Okay. So as we are dealing with two variables, you will have 2 to the power of n is equals to number of cells. When n is equals to number of variables, and m is equals to number of cells. M is equals to number of cells. So in this case, you have two variables. So 2 to the power of 2 will give you 4. So there should be four cells. There should be four cells. So these cells are this. These cells are this. Now you can identify there are four cells. Now you have to number these cells. How do you number these cells? How do you number these cells? Okay. मैंने दोनों ही के मैप के दिखा रहा हूं मैं. एक के मैप में जब मैंने ए ऊपर लिया, बी नीचे लिया, यहाँ पे ए नीचे लिया, बी ऊपर लिया. I need to number the cells. How do you number the cells? The numbering is done in what way? Just see here. Before I do the numbering of the cells, as this is your, now please concentrate on this first K map.
This is called as a K-map of two variable. Now, if you see this A can have zero value or one value. Okay, we'll have zero value and one value. See, unless and until it is specified, K-map is mostly associated with SOP. It is associated with the min terms. Unless and until specified. Okay, it is associated with the min terms. It is associated with the SOP. Okay, अगर मेंशन किया रहेगा तब जाके वो पॉज फॉर्म में रहेगा या फिर मैक्स टर्म फॉर्म में रहेगा. ओके, there is only slight difference between using the K-map for SOP and using the K-map for pause. So that thing we will see later on. यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि by default maximum time we are using the K-map for associated with the min terms, also associated or associated with the SOP. Now here, if I'm writing down, if I'm having the variable as A, then this A will take either the value of 0 or 1. You know, in the in the form of min term, A bar is taken as 0 and A will be taken as 1. So here, this particular portion will be taken as A bar and this will be taken as A. Similarly, this portion will be taken as B bar and this portion will be taken as B. Okay, or in other words, this portion will be taken as 0 and this portion will be taken as 1. Similarly, here also this portion will be taken as 0 and this portion will be taken as 1. Okay, now if you see carefully, same thing I can write down here also for the other K map. Okay, अगर ये मैंने B ऊपर लिया है, so this will be taken as B bar and this will be taken as B. This will be taken as A bar and this will be taken as A. Or else this is 0, this is 1, this is 0 and this is 1. Now I am at the state of numbering the cells. See the numbering of the cells. This 0 will have the cell number as 0. 0, 0. This 0, this 1 will have the cell number as 0, 1. This 1, this 0 will have the cell number as 1, 0. And this 1 and this 1 will give the cell number as 1, 1. Okay, so always we have to start from this side. Always we have to start from this side. First, the first priority will be given at this. The second priority will be given as this. That means 0, 0, 0, 1, then 1, 0, 1, 1. So that is why 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So 0, 0, the first cell 0, 0, that is 0, 0 is equivalent to decimal number 0. So this is your first cell. ये वाला first cell. Then if I ask you to tell me the second cell is this 0, 1, because 0, 1 is equivalent to 1 in decimal. Then if I ask you to tell me the third cell, you should say 0th cell. This is 0th cell. This is first cell. Then this is second cell and this is third cell. Okay, so this is 0th cell. This is first cell. This is second cell and this is third cell. Okay, so 0, 0, 0th cell. This is first cell. Then this is 1, 0, which is called as a second cell. And this is third cell. So 1, 1 corresponds to decimal number 3. So this is third cell. This is third cell. Okay, this is third. Similarly here, this is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So these are the cells. Okay, so this is a representation of your K map. This is a representation of your K map. Okay, this is a representation of your K map. अभी ये सेल नंबर हमको पता चला है. हमने वेरिएबल्स भी मुझे पता है कि मैं 2 वेरिएबल्स ले रहा हूँ. आपको पता है ए बार कहाँ पे लिखना है, आपको पता है ए कहाँ पे लिखना है, बी बार कहाँ पे लिखना है, बी कहाँ पे लिखना है. ओके, you have to choose either of these two cells when you are dealing with 2 variables. ओके, एक में एक ए ऊपर लिखो, बी नीचे लिखो, या फिर ए नीचे लिखो, बी ऊपर लिखो. So you can choose any of this. Okay, there is no harm. Okay, now this is for the 2 variable K map. Now something more about the 2 variable K map. Now if I am writing down here A and this is B and you have the cell,
Okay, now you have understood this is 0, 1, 2, 3. This is the cell number I'm giving. Okay, so you know this is a 0, this is 1, this is 0, and this is 1. Okay, now what is there in the cell? Cell के अंदर क्या है? Cell के अंदर क्या है? Okay, cell के अंदर क्या है? Now cell के अंदर क्या है? That thing we will see when we will be dealing with the problems of the K-map. When we will be dealing with the problems of the K-map. Okay, let me tell you. I will let me give you the problem. Okay, then it will be fine for you to understand. Okay, now representation of truth table using the K-map. अगर आपको एक ट्रूथ टेबल दिया है, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन. सपोज आपको ट्रूथ टेबल दिया है. ओके, तो दिस इज योर ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल इज हैविंग इनपुट वेरिएबल. So suppose variables are A and B. As I'm dealing with two variable K map, तो मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ और ये आपका ट्रूथ टेबल है and this is your Y as an output. This is your output. This is your output. Okay, that is Y is your output. Now see here, you have two variables, so you have four options: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. And suppose the outputs are यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1. If suppose this is the truth table. Okay. Why do we simplify the Boolean expression? You have understood that we simplify the Boolean expression so that there should be simplified version of that Boolean expression, so that can be implemented by using the minimum number of hardware, so that the cost is minimized. हार्डवेयर कम, कॉस्ट कम. हार्डवेयर ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा. तो सिंप्लीफाई जब करना है तो यू कैन गो विद द के मैप. हाउ डू यू सिंप्लीफाई? प्लीज पे अटेंशन. ओके, नाउ हियर ये ट्रूथ टेबल के हिसाब से आई हैव टू कन्वर्ट इनटू द के मैप एंड आई हैव टू सिंप्लीफाई. Okay, now here you have understood that output is 1, 1, 1 available at this row number, this row and this row. Now you know that as per the cell number, now you know that this is 0, 1, this is 0, 1. Okay, this is 0, 1. Now when you talk about 0, 1, आपको एक बात याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात. ये के मैप जो मैं यूज कर रहा हूँ, ए नीचे मैंने दिया है, बी ऊपर दिया है, और ये ट्रूथ टेबल में भी ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे. ओके, नाउ हियर 1 is available at a is equals to 0 and b is equals to 1. So where is your a देखो, a 0 and b is equals to 1. So can I say this is the cell I am talking about? This is the cell I am talking about as far as this second row is concerned. Yes. So at that cell you will enter this 1. So here 1 will be entered. Come to the next row where a is equals to 1 and b is equals to 0. So a is equals to 1 and b is equals to 0. So this is the cell I am talking about. This is the cell. So here also you will enter 1. So 1 will appear here. Then the last row where a is also 1 and b also 1. So a1 or b1. So this is the cell I am talking about. So here you will enter 1. So here also we will have 1. Okay. So this is the, as per the truth table you have entered 1. तो जहां पे 1 डालना है वहां पे आपने 1 डाला है. बाकी के सेल में आपको 0 डालना है. बाकी के सेल में आपको 0 डालना है. ओके, यहाँ तक समझ में है सबको? एवरीवन? किसी को कुछ डाउट? Everyone has understood? So this is the representation of K map. This is the representation of K map by using two variables. Okay. अभी ये 1 डालने के बाद आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट. वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. लेट मी कंप्लीट विथ 3 वेरिएबल. लेट मी कंप्लीट विथ 4 वेरिएबल. सिर्फ मुझे आपको ये बताना था हाउ डू यू आइडेंटिफाई द सेल नंबर, how do you write down the variables in the K map, and if the truth table is given, how do you enter the numbers in the cell? Wherever you have 1, that will be entered in the corresponding cell depending upon the value of a and b. Okay, यहाँ तक मैंने लिया है. इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है वो कैसे रहेगा, that thing I will explain you. Let me complete first the 3 variable. Now this is the 3 variable. I have completed with the 2 variable. Let us see the 3 variables. 3 variable K map.
3 variable K map. So 3 variables means I will have A, I will have B, and I will have C. If the question is how many cells are there, it is 2 to the power of n is equals to m. So 2 to the power of 3 is equals to 8. So there will be total number of 8 cells will be there. और वो 8 cells कैसे रहेंगे? C है. अब यहाँ पे भी मैं बताते समय आपको दो फॉर्म में बताऊंगा. There are different ways of drawing the K map. Only variables will change. Okay, only variables will change. You can write down here A and BC here, or else you can write down AB here and C will be written here. मैं आपको different ways बता रहा हूँ K map draw करने के for 3 variables. You can choose any one of that. Okay, but see that A B C जो आपका sequence है, तो A यहाँ पे आया तो B C ऊपर आएगा. अगर सपोज आपने A B यहाँ पे लिया तो C यहाँ पे आएगा. Okay, you cannot interchange the sequence. You cannot interchange the sequence. Okay, so A B and C, A B and C. Okay, so this is how the variables have been written. Now I should have 8 K maps. I should have 8 K maps. See the K map for 8 variable. We will see for this first K map. See the 8 cells. See the 8 cells. These are the 8 cells. These are the 8 cells. Okay, these are the 8 cells. अभी ये एक तरीका मैंने बताया, और एक K मैप बनाने का और एक तरीका है फॉर 3 वेरिएबल्स. वो क्या है वो देखो. I can have A, B here, and I can have C here. I can have C here. Okay. So in that case, your 8 cells will be this. और ये ऊपर वाला जो सेल है उसके लिए 8 cells will be this. Okay. So here I think I have shown you 3 different ways. A, B, C. A, B ऊपर, C नीचे, या फिर A, B नीचे और C ऊपर. ओके, नाउ सी द नंबरिंग. नंबरिंग के पहले मैं ये जो A है, इट कैन बी A बार और इट कैन बी A. BC के लिए देखो, BC है, कॉम्बिनेशन BC का है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है. आई वॉन्ट एवरीवन टू हैव अ कीन ऑब्जर्वेशन. हाउ एम आई राइटिंग डाउन द column now? This one 0 is for this row, this one is for this row. Now for the BC, see the column numbers. I am talking about the column number, not the cell number. पहला वाला कॉलम रहेगा 0 0. सेकेंड कॉलम रहेगा 0 1. ओके, थर्ड वाला कॉलम रहेगा 1 1 और ये लास्ट वाला कॉलम रहेगा 1 0. इसका मतलब देखो 0 0 0 1 1 0 1 0 पहले इधर आएगा और बाद में 1 1 यहाँ पे. There is a specific reason for this. That thing I will explain you afterwards. Okay, so 0 0 0 1 1 1 1 0. Okay, ये मैंने रो और कॉलम्स को नंबर दिए. वैसे मैं यहाँ पे भी देता हूँ. This is 0, this is 1, this is 0 0 0 1 1 0 1 1. वैसे इसको भी देता हूँ. C का है तो यहाँ पे एक 0 रहेगा, यहाँ पे एक 1 रहेगा, और ये जो रहेंगे वो रहेंगे 0 0 0 1. ये लास्ट वाला रहेगा 1 0 और ये रहेगा 1 1. So these are the numbers given to the row and column. रो कॉलम आने के बाद ही मुझे सेल नंबर आता है. ओके, वो कैसा रहेगा? अब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ. आई वॉन्ट यू टू क्रॉस चेक जो मैंने लिखा बराबर है. आई एम गिविंग द नंबर्स टू द सेल नाउ. आई वॉन्ट यू टू क्रॉस चेक. 0 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7. अब यहाँ पे
So this is your 0, 0, 1, 2, 3. Then this is your 4, 5, 6, and 7. So these are the cell numbers. These are the cell numbers. These are the cell numbers. Now I will tell you how you have got the cell numbers. 0, 0, 0. So 0, 0, 0 equivalent to 0. Decimal number 0. So this is your 0. Then 0, 0, 1. It is 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0. So that means your ABC is this. Okay. So ABC is this. So it is 0, 1, 0. So 0, 1, 0. Yeah, 0, 1, 0 is 2. 0, 1, 1 is 3. Then 1, 1, 0, 0 is 4. 1, 0, 1 is 5. 1, 1, 0 is 6. And 1, 1, 1 is 7. Similarly here also. Similarly here also. You can cross check. You can do this afterwards. यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो. यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो. I have given the cell numbers now. I have given the cell numbers. यहाँ पे किसी को डाउट है? No, sir. Anyone किसी को डाउट है तो पूछो. आपके एग्जाम में आने वाला है सब ये. So you should know this. So if you don't have any question, let me draw a separate one. So this is A I have taken. This is I have taken BC. और मैंने 8 सेल्स ऐसे बनाए थे. अब मैं 01 और 0001 नहीं लिखूंगा. 0 का मतलब है यहाँ पे A बार. 1 का मतलब है यहाँ पे A. अभी कॉलम में देखो. 00 का मतलब है B बार, C बार. 01 का मतलब है B बार, C. 10 का मतलब है B, C बार. और 11 का मतलब है B, C. तो वही है मैंने जो लिखे थे. 0, ये है 1, ये है 0, 0, ये है 0, 1, ये है 1, 0 और ये है 1. मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि A bar will be written as for 0 and A will be written for 1. Same thing is applied for B as well as C. I hope you have understood this. Yes. Yes, sir. Okay. So if you have understood this, then we have done with the K map. वही अभी फिर से वही बात है. अगर ट्रूथ टेबल दिया रहेगा आपको A, B, C इनपुट वेरिएबल्स और एक आपको Y दिया रहेगा, तो आपका ABC का रेंज स्टार्ट होगा 0, 0 से लेके 1, 1, 1 तक. और कहीं पे 1 रहेगा, कहीं पे 0 रहेगा, 1 रहेगा. तो जहाँ पे 1 रहेगा वो आपको देखना है करस्पॉन्डिंग बिट्स क्या है और वहां पे आपका 1 की एंट्री करनी है वो सेल में. ओके. सो दिस इज फॉर योर 3 वेरिएबल के मैप. दिस इज अबाउट योर 3 वेरिएबल के मैप. 1 की एंट्री होने के बाद सपोज 1 की एंट्री हो गई, सपोज 3 1 हो गए, बाकी ये सब 0 है. इसके बाद एक स्टेप आता है जो आपको सिंप्लीफाई करने का स्टेप रहता है. तो वो कैसे करना है मैं आपको विद एग्जांपल लूंगा. लेकिन लेट मी just introduce you with 2 variable, 3 variable and 4 variable. So we have seen with the 3 variable. Proceed to the 4 variable now. Proceed to the 4 variable. Now 3 हो गया. Now this is 4 variable. 4 variable K map. 4 variable K map. So 4 variable K map will have A, will have B, will have C and will have D. Will have D. So the 4 variable K map will look like this. A, B नीचे लिखो, C, D ऊपर लिखो. ये ठीक नहीं लग रहा होगा तो A, B ऊपर लिखो, C, D नीचे लिखो. So this will be having 2 to the power of n is equals to m. N is equals to number of variable 4. So you will have 4 fourths are 16 cells. You will have 16 cells. So these cells are this.
these are the 16 सेल्स. ओके, सो ए बी नीचे या फिर ए बी ऊपर, आपको जैसा ठीक लगे. अब मैं 0 0 नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे. ये रहेगा आपका ए बार बी बार, ये रहेगा 0 0 0 1, तो 0 1 1 0 1 1, सॉरी 1, और ये बी 1 1. ये रहेगा 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1. Similarly here also 0 0 0 1 1 0 1 1 1. Yes. And here you will have 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1. Yes. Okay. Now cell numbers मैं directly लिख रहा हूँ. Now here also you have to pay attention. This is also very important. ये आपको बाद में क्रॉस चेक करना है. ये आपको बाद में क्रॉस चेक करना है. क्रॉस चेक कैसे करोगे आप? ए बी सी और डी will start from 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1. ठीक है, तो जैसे ये मेरा 0 0 है, तो ये 0 ए बार बी बार और सी बार डी बार, तो ये मेरा सेल नंबर हो गया 0. वैसे अगर ये 0 0 0 1 है, तो ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी, ये मेरा सेल नंबर होगा 1. ठीक है, ये क्रॉस चेक करना है सबको. मैं डायरेक्टली सेल नंबर लिख रहा हूँ. आई वॉन्ट एवरीवन टू पे अटेंशन. सेल नंबर ऐसे लिखे जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो कहाँ पे जा रहा है. 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ये आपके सेल नंबर. अभी एक बात है, हाँ, देखो ए बी मैंने नीचे लिखा, सी डी ऊपर लिखा, तो ये सीक्वेंस आया. अभी ए बी ऊपर है, नीचे सी डी है. ओके, तो अभी आपको केयरफुली करना है. आपका सपोज पहला सेल नंबर देखना है आपको, तो 0 0 0 0, तो ये वाला 0 ए बार बी बार सी बार डी बार, ये आपका पहला 0 है. दूसरा वाला देखो क्या है, 0 0 0 1 ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी, ये देखो 1 इधर है. अभी देखो सेल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो कहाँ पे जा रहा है, 8 9 10 11 12 13 14 and 15. These are the cell numbers. Yes, if you have question, please ask. सर हाँ, सर सेकेंड वाले का ऑर्गेंजल भी लिख सकते हैं ना, ऑर्गेंजल नंबर दे सकते हैं ना. क्या दे सकते हैं, फिर से बोलो. ऑर्गेंजल भी नंबर दे सकते हैं ना, पहले कैसे दिया, सेकेंड वाले में 0 1 3 2 ऐसा रो वाइज भी दे इसमें सकते हैं कैसा है, मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ. आपने ए बी सी डी कैसे लिखा है, ये सीक्वेंस में ए बी सी डी, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ए बी सी डी ये सीक्वेंस है, तो आपका ए सपोज यहाँ पे है, आपका बी यहाँ पे और सी डी ऊपर है ना, तो आपका 0 सेल है ना यहाँ पे आएगा, आपका फर्स्ट सेल यहाँ पे आएगा, आपका सेकंड सेल यहाँ पे आएगा, और आपका थर्ड सेल यहाँ पे आएगा. लेकिन वही अगर मैंने ए बी ऊपर लिखा और सी डी नीचे लिखा, तो आपका 0 सेल देखो यहाँ पे आता है, फर्स्ट सेल यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आता है 4 के पास, ये नीचे आता है, और सेकंड सेल यहाँ पे आता है, और थर्ड सेल यहाँ पे आता है. तो यहाँ पे ये देखो 0 1 3 2 3 जो है, और ये देखो ये इतना डिफर क्यों किया इसने, क्योंकि ए बी ऊपर लिखा और सी डी नीचे लिखा. इसलिए ये जो सीक्वेंस आप फॉलो करते हो ना, ए बी सी डी,
तब आप जब सेल नंबर देते हो ना तो ये हिसाब से सेल नंबर देना है। जैसे सपोज मैंने सपोज ये सेकेंड वाला लिया 0001, इसका मतलब क्या है, ये 0 बोले तो ए बार, ये 0 बोले तो बी बार, ये 0 बोले तो सी बार, और ये 1 बोले तो डी। तो ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी, देखो कहाँ पे, ये देखो ए बार बी बार, देखो ये देखो ए बार बी बार और सी बार डी। तो ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे मिलता है ना, तब जाके मेरा ये फर्स्ट सेल होता है, ये फर्स्ट सेल तैयार होता है। तो ये मेरा फर्स्ट सेल। और वही अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ये फर्स्ट के मैप में, तो ए बार बी बार सी बार डी, देखो कहाँ पे, ए बार बी बार सी बार डी, ये देखो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मिलता है सेल नंबर। इसलिए हमेशा याद रखना कि आप वेरिएबल्स कहाँ पे लिख रहे हो, वो हिसाब से आपको सेल नंबर लिखने पड़ते। इसलिए आप एक ही चीज याद रखना कि दोनों में से, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है। आप अगर ये करते हो कि मैं आगे चल के हमेशा के लिए मैं ए बी नीचे लिखूंगा और सी डी यहाँ पे लिखूंगा, तो आप आंख बंद करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 खत्म। सो दैट यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर मैं ये फॉलो करता हूँ ए बी नीचे और सी डी ऊपर, देन यू विल फॉलो दिस। वैसे ही अगर आपने फॉलो किया कि मैं ए नीचे लिखूंगा और बी सी ऊपर लिखूंगा, तो डायरेक्टली क्या याद रखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्रॉस चेक करना है तो देख सकते हो आप, ए बी सी 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो सपोज मैं इसके लिए ले रहा हूँ 0 0 1 के, 0 0 1 का मतलब क्या है, ए बार बी बार सी, ए बार ये देखो आपका ए बार, ये देखो आपका ए बार बी बार सी, आपका ए बार यहाँ पे मिला आपको, बी बार सी का आपका देखो बी बार सी यहाँ पे, बी बार सी यहाँ पे। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेल, ये आपका 0th सेल जिसमें सभी 0 है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये पहला सेल यहाँ पे आएगा। लेकिन ये फर्स्ट सेल जो है जिसमें ए बार है बी बार है और सी है, ए बार बी बार और सी, तो आपका ये देखो ये फर्स्ट सेल यहाँ पे। तो हमेशा अगर ए नीचे और बी सी ऊपर लिया तो याद में रखना कि ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और 7, ठीक है। वैसे ही ये, ठीक है, ये अभी जो मैंने लिया वो ये फॉर्मेट था। तो बाद में ये बाकी की चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं, ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये एक फॉर्मेट याद रखना कि पहला नीचे बाकी ऊपर। वैसे ही अगर टू वेरिएबल है तो मैंने ए नीचे लिखा बी यहाँ पे लिखा, तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैंने बी मैंने नीचे लिया और ए ऊपर लिया, तो ये मेरा 0, ये मेरा रुको आई विल शो यू, मैं यहाँ पे होता, ये मेरा ए बी लिखा मैंने, तो मैं सपोज मेरा ए और ये बी है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये मेरा 0th सेल, ये मेरा फर्स्ट सेल, ये मेरा सेकेंड सेल, ये मेरा थर्ड सेल, ठीक है। तो ए बार बी बार बोले तो ये वाला ये 0 सेल, ये सेकेंड वाला देखो क्या है, ए बार बी, आपका ए बार देखो ए बार ये ए बार बी, ये फर्स्ट सेल। थर्ड वाला देखो ए बी बार, ये सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला। अब लेकिन अगर मैं ए ऊपर लिख रहा हूँ और बी नीचे लिख रहा हूँ और ये मैंने सेल्स बनाए, तो अभी ये सेल आपके ऐसे होंगे 0 1 0 1 2 और 3, ये देखो 0 1 2 3, लेकिन ए ऊपर लिखने के कारण ये 0 सेल, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड। तो हमेशा एक ही इस पे याद रखना और यही करना, फिर ये करने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं। हमेशा ए नीचे लिखा बाकी के ऊपर लिखा, तो 0 1 2 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ सर। हाँ सर ए बी का ऑर्डर देखना है ना, क्या लिखना है, ए बी के ऑर्डर में जाना है ना, मतलब ए पहले फिर हाँ बी। हाँ यस यस यस, हमेशा ये सीक्वेंस याद रखना, ए बी सी डी। फिर आपने पहले रो फिर कॉलम बोला था। क्या बोला था मैंने पहले, रो को फर्स्ट प्रेफरेंस फिर कॉलम को, इसके लिए उल्टा हो गया।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लेकिन पेज पे अब अच्छा अच्छा इसके अच्छा, नेक्स्ट पेज, हाँ ये वा, इधर, ये वाला। इधर भी और उसके पहले वाले में भी एक है, जहाँ पर 4 है ना। नहीं नहीं, ये ये नहीं, वाला। हाँ इधर, नहीं नहीं, वो 4 चला वेरिएबल, गया अभी। 4 वेरिएबल। नहीं सर, 2 वेरिएबल्स। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक नहीं, और एक ये था ना जिसमें 2 ड्रॉ किया था आपने, हाँ यही अच्छा, है। ये वाला ना। हम्म, हाँ, तो ये ए इस ऊपर है, बी नीचे है, और यहाँ पे ए नीचे है और बी ऊपर है। यस यस, अच्छा ठीक है, मैंने बोला था पहले ये फॉलो करना यार, नहीं ठीक है। नाउ यू कैन मेक अ चेंज, यू कैन मेक अ चेंज। ऑलवेज यू टेक ए एज द, पहले नीचे रखो, बाद में बी ऊपर रखो, और फॉलो करते समय हमेशा ए बी के फॉर्म में फॉलो करो। तो फिर आप इसको 00011011 करोगे तो आपको ये 0, ये 1, ये 2 और 3 मिलेगा। ठीक है, यू प्लीज मेक द करेक्शन as you write down your a and b upper for 2 variables, as well as if you write a नीचे bc ऊपर, as well as if you write ab नीचे and cd ऊपर, then there won't be any problem. You can follow by a b c and d, ये हिसाब से फिर आप सेल नंबर भर सकते हो। now is it fine? सर वो यस 3 वेरिएबल वाले में एक बार हाँ, सर। एक मिनट 3 वेरिएबल में बताता हूँ। ये वाला ए नीचे बी सी ऊपर, तो इसलिए अगर ये फॉलो करोगे तो ये सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5, सेल नंबर 6, सेल नंबर 7, यानी ये फिर हर तरफ लागू होता है। ए नीचे और बी से ऊपर गया तो देखो, अगर ऐसे अगर आप 4 वेरिएबल के लिए करते हो ना, ए बी और सी डी ऊपर, तो आपका देखो कैसा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नीचे 8, ये 9, ये 10, ये सॉरी ये 10, ये 11, और ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। ठीक है, तो हमेशा स्टार्टिंग वेरिएबल नीचे लिखो, और बाकी के वेरिएबल वो हिसाब से 4 वेरिएबल है तो ए बी नीचे, सी डी ऊपर, 3 वेरिएबल है तो ए नीचे, बी सी ऊपर, और अगर 2 वेरिएबल है तो ए नीचे और बी ऊपर। फाइन। सर वो जिसमें ए बी एक साथ था और सी अलग था, उसमें आपने पहले सी को हाँ कंसीडर किया। एक मिनट, ये वाला, यस सर। ये वाला ना। यस सर। यस हाँ हाँ, अगर ये लेते हो ना तो नंबरिंग देखो मैं बताता हूँ, ए बी और सी, 0 0 0 0 0 1, 0 0 को आपको पता है वो हमेशा पहले आएगा। ठीक है, अभी जो ये 0th सेल है, फर्स्ट सेल यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। एक अगर पहला सेल समझ गया तो बाकी आपको बाकी के सीक्वेंस समझ में आते हैं। अभी ये देखो क्या सीक्वेंस है, ए बार बी बार सी, फाइंड आउट वेयर इज ए बार बी बार सी। सो ए बार देखो, ए बार बी बार एंड सी, सो कैन आई से दिस इज 1। हाँ, यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे गलत हुआ है, यस और नो, यहाँ यस पे सर। गलत हुआ है। यस हाँ यस, यू आर राइट, गुड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे रॉन्ग हुआ है मेरा। ए बार बी बार सी, ए बार बी बार यानी 0 0, सी बोले तो 1, तो ये मेरा सेल यहाँ पे, तो ये 0, ये 1। ठीक है, ठीक है, मैं आगे का भी बताता हूँ। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 बोले तो सेकंड सेल कहाँ पे आएगा, देखो ए बोले तो 0, तो ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी का बार कहाँ पे, देखो ए बार बी सी बार, तो ये यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, sorry 0 1 2 3, okay, then your 4 5 6 and 7,
Now it is right. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Now it is right. Thank you for you correcting me, because ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लोगों के आउटपुट सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन नहीं आते, क्योंकि इसके कारण, क्योंकि उनको सेल नंबर ही प्रॉपर डालने नहीं आते. इसलिए मैं सबसे पहले ये बताता हूँ. 3 वेरिएबल्स के लिए ये यूज करो, 3 वेरिएबल्स के लिए ये यूज करो, ओके. 2 वेरिएबल्स के लिए ये यूज करो, एंड 4 वेरिएबल्स के लिए ये यूज करो. खत्म. फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको सेल नंबर याद रहेगा. एनी मोर क्वेश्चंस यू हैव? तो वैसे बाकियों में भी चेंजेस करने पड़ेंगे. हाँ, बाकी में भी आप आराम से चेंजेस करो. यस. ठीक है ना. हाँ, इसे देखो, शुरुआत में सिखाने के लिए मुझे बताना पड़ता है कि हम किस किस तरीके से के मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई है ना, तो आप एक ही के मैप को स्टिक करो. 2 वेरिएबल के लिए क्या कैसे करना है, 3 वेरिएबल के लिए कैसे करना है, और 4 वेरिएबल के लिए. ठीक है. यानी अभी इसमें से आपको क्या समझ में आया है कि आपको सेल नंबर्स कैसे लिखने, आपको वो समझ में आया. तो एक बार समझ लो प्रॉपरली, और एक ही के मैप से स्टिक करना. इट मे बी फॉर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल. इज इट फाइन? Yes, sir. Okay. Any more questions? Any more questions you have? No, sir. Okay. Now see here. Now the important thing is, whenever you write down the numbers, in the K map, how do you solve that? Okay, I will just show you how do you solve that. Okay, I will take an example. If this is my 2 variable K map, and you have got here 0 and this is 1, here 1 and here 1. अभी मैं सेल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, रो नंबर नहीं और कॉलम नंबर नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है ना. आपको अभी वो याद रखना है. सपोज वो ट्रूथ टेबल के हिसाब से मैंने ये नंबर डाल दिया है, एज पर द ट्रूथ टेबल. Now after that you have to make the groups of 1. Okay, now pay attention. You can make a group of 1, you can make a group of 2 means pair. You can make a group of 4 बोले तो जैसे एक सिंगल 1 का ग्रुप बना सकते हो, या फिर आप 2 का पेयर बना सकते हो, या फिर आप 4 का ग्रुप बना सकते हो. whenever you make a group of 4. ओके, whenever you make a group of. अच्छा, उसके पहले मैं बताता हूँ. जब हम ग्रुपिंग करेंगे, ओके, सो एक सिंगल अगर 1 है तो उसका ग्रुप बन सकता है. अगर 2 एक है, दैट मीन्स पेयर, बट दिस पेयर शुड बी एडजेसेंट. सो 2 एडजेसेंट वंस. ओके, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2 adjacent ones. ओके, अभी 3 का ग्रुप बन सकता है क्या? मैं बना सकता हूँ क्या? नहीं, मैं 3 का ग्रुप नहीं बना सकता हूँ. मैं 4 का ग्रुप बना सकता हूँ क्या? हाँ, मैं 4 का ग्रुप बना सकता हूँ. जब 4 का ग्रुप बनेगा तो उसको बोलते हैं क्वाड. तो 4 का ग्रुप बनाना, इसका मतलब 4 adjacent is very important. Please underline adjacent. 4 adjacent ones. Okay, then मैं 5 का ग्रुप बना सकता हूँ क्या? नहीं. 6 का ग्रुप बना सकता हूँ क्या? नहीं. 7 का ग्रुप बना सकता हूँ क्या? नहीं. मैं 8 का ग्रुप बना सकता हूँ, तो 8 का ग्रुप बना सकता हूँ. अगर 8 का ग्रुप बना रहा हो तो उसको कहते हैं ऑक्टेट. तो इसको मैं बोल सकता हूँ 8 adjacent ones. 8 adjacent ones. Okay, 8 adjacent ones. So you can
अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपका सिंगल वन है उसका एक सिंगल ग्रुप बन सकता है। ओके, अगर आपके पास दो टू एडजेसेंट वंस है, इसका मतलब उसका पेयर बन सकता है। यस, टू एडजेसेंट वंस का आप ग्रुप बना सकते हैं। आपके पास फोर वंस का एडजेसेंट ग्रुप है तो आप उसका ग्रुप बना सकते हो। यस, आप उसका ग्रुप बना सकते हो। ओके, यू कैन मेक अ ग्रुप, यू कैन मेक अ ग्रुप। ओके, आपके पास अगर 8 एडजेसेंट वंस है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट, उसका ग्रुप बना सकते हो क्या? हाँ, बना सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ग्रुप बना सकता हूँ और मेरे पास सभी ऑप्शन है कि मैं 2 का भी बना सकता हूँ, 4 का भी बना सकता हूँ, 8 का भी बना सकता हूँ, तो सबसे पहले कौन सा बनाना है? हमेशा याद रखना, सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा, सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको मिलती है, सेकेंड प्रायोरिटी इसको मिलती है, थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलती है, और लास्ट प्रायोरिटी इसको मिलती है। ओके, लास्ट प्रायोरिटी इसको मिलती है। तो हमेशा याद रखना, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हमको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को बाय यूजिंग द के मैप। ओके, सो टू गेट द मिनिमम नंबर ऑफ हार्डवेयर, इट्स बेटर इफ यू ग्रुप 8 वंस। तो पहले प्रायोरिटी इसको, सेकेंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी। ओके, ग्रुप करने की। अब मैंने जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये ऊपर देखो अभी यहाँ पे ए बी। अब मुझे बताओ, मेरे पास सेल है इतने। अभी और एक मैं बात बताता हूँ, और एक बात बताता हूँ। मेरे पास अगर 2 वेरिएबल्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स मैं कितने कर सकता हूँ? 2 to the power of 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी 2 to the power of 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये इधर आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कौन सा बना सकता हूँ मैं? बड़ा ग्रुप कौन सा बना सकता हूँ? 2 to the power of 3। 2 to the power of 3 बोले तो 2 to 4, 4 to 8। और मेरे पास अगर 4 वेरिएबल का ग्रुप है तो 2 to the power of 4। तो मैं कितना मैक्सिमम बड़ा ग्रुप बना सकता हूँ? 16 का। ओके, तो हमेशा रखना, याद रखना, अगर 3 वेरिएबल से तो मैक्सिमम मैं बड़ा ग्रुप 8 ऑक्टेट का कर सकता हूँ। अगर 2 वेरिएबल से तो मैक्सिमम मैं बड़ा ग्रुप क्वाड का बना सकता हूँ। ओके, यानी 3 वेरिएबल में 8 ग्रुप बनेगा तो ठीक है, नहीं तो 4, नहीं तो 2, नहीं तो 1। वही अगर 2 वेरिएबल से सबसे बड़ा ग्रुप का प्रेफरेंस 4 ग्रुप 4 वंस को मिलेगा, वो अगर नहीं है तो 2, वो अगर नहीं है तो 1। वैसे ही 16 का सबसे बड़ा 16, वो नहीं है तो 8, वो नहीं है तो 4, वो नहीं है तो 2, वो नहीं है तो 1। ओके, so that is the mean. Now let's solve this. Okay, I will draw in the fresh page. So here you have A, here you have B, and you have 4 cells, and it is 0 1 1 1 0 1 1 1. So tell me, can we make a group of 4 ones? 4 ones की बात नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे 3 ही 1 है। So no question of 4. Come to the pair 2. 2 का ग्रुप बना सकता हूँ? यस। तो देखो ग्रुप कैसा, हाँ, तो देखो ग्रुप कैसा बन रहा है। ये देखो, ऐसा करना है आपको ऐसा करना, आपको ऐसा करना। ओके, ये ग्रुप बन गया, लेकिन ये एक बन गया, ये एक अकेला रह गया। तो ये अकेले का आप एक सिंगल ग्रुप बना सकते हो, लेकिन ये 1 का अगर दूसरे 1 के साथ ग्रुप बन सकता है तो उसको भी लेना है। तो फिर मेरा ये ग्रुप नहीं बनेगा, मैं इसको इरेज कर दूंगा। आई विल इरेज दिस, I will not take 1 as a single group. What I will do, I will take this group. Yes. अब मेरे 2 पेयर बन गए। I have 2 pairs. Okay. I have 2 pairs. Okay. अब देखो क्या करना है, आपका फाइनल आंसर y equals to आपके फाइनल आंसर देखो क्या है। When I am combining this 1 1, okay, अब यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका है 0, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है। So when I am combining this,
this 0 and this 1 will be nullified, and by grouping this 1 1 you will be left with only this one, and this one is nothing but A. So first term is A. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जब ग्रुप बनता है ना, तो ये ग्रुप के इक्विवेलेंट जो है ये 0 है और ये 1 है. इफ यू सी कॉलम वाइज, तो दिस 0 and this 1 will cancel each other. You can treat this as a opposite pole. They will cancel each other. Then see the row wise. You are left with only one. One is nothing but A. So you have got first term. As I have told you, we are always dealing by default with the sum of product. That is min term. Okay. So plus second term. आपने कितने ग्रुप बनाए? 2 ग्रुप बनाए, तो आपके 2 टर्म्स आएंगे. ये पहला टर्म और सेकंड टर्म अभी हम लिख रहे हैं. अगर 3 ग्रुप बनते थे तो आपके 3 टर्म्स आते थे, लेकिन आपके 2 ग्रुप्स बने, तो ये ग्रुप का क्या टर्म आएगा वो देखो. अब ये जब मैं ग्रुप बना रहा हूँ, तो इफ आई सी रो वाइज, दिस 0 and this 1 will cancel each other. Then if you see the column wise, you have left only one. So this one is equivalent to B. So this is B. So the equation is y is equals to A plus B. Can any one of you tell me y is equals to A plus B is the equation of which gate? It is the equation OR gate. Very good. Yes, OR gate. Can any one of you tell me the truth table of OR? Yes. A or B, 0 or 0. Tell me the truth table. 0.1. 0 or na? 0 or 1. 1 or 0. 1. 1 or 1. 1. 1. If you see carefully, this truth table is implemented in the K-map. How come? See here. Cell number 0, cell number 1, cell number 2, cell number 3. 0, 0, A bar, B bar 0. So A bar, B bar 0. तो ये सेल नंबर में मेरा 0 जाएगा. A bar B, so A bar B कहाँ है मेरा? A bar B मेरा ये है, तो वहां पे क्या है मेरा 1 है, तो 1 यहाँ पे आएगा. ये क्या है? A B बार बोले तो आपका सेकंड सेल, ये A B बार सेकंड सेल, उसमें आपका क्या है? आउटपुट 1. सो 1 इज हियर. और लास्ट में क्या है? A B बोले तो ये थर्ड सेल, वहां पे 1. कैन यू सी हियर? 0 1 1 1, 0 1 1 1. So this is the truth table of your OR gate, and the equation which you have got is the equation of OR gate. And this is by using the K-map. I hope you have understood this now. Yes. Everyone has understood? Sir, और एक एग्जांपल. और आपको एग्जांपल दूं? यस, और एक एग्जांपल. और एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, मैं एक देता हूँ, लेकिन याद रखना, ये आज तक मैंने जो लिया है वो एग्जाम में के सिलेबस के हिसाब से लिया है. ठीक है, ये यहाँ तक लेने का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट लेक्चर में नहीं लूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में मुझे डिटेल में और लेना है, लेकिन मैंने जितना समझा है जो एग्जाम में आने वाला है उतना मैंने आपको समझा. ओके, तो यू हैव टू स्टडी ऑन दिस. ओके, एंड द रिमेनिंग ऑफ द पार्ट आई विल टेक आफ्टर योर एग्जाम. Okay, so I will take one more example before I wind up. So for that I will take three variable K-map.
सो 3 वेरिएबल के मैप है, सपोज ये मेरा ए है, अभी मैंने फॉलो किया है, ए मैं ए नीचे लूंगा और बाकी के ऊपर लूंगा, ओके ये मेरा के मैप है सपोज। सो हियर आई एम हैविंग सेल्स, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताया एक 1 का ग्रुप हो सकता है, 2 1 का ग्रुप हो सकता है, 4 1 का ग्रुप हो सकता है, 8 1 का ग्रुप हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो ग्रुप कहाँ से बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, ओके। लेकिन सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशंस अभी कैसे फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये के मैप है 3 वेरिएबल का, और ये के मैप 3 वेरिएबल में मैंने कौन से ये लिए है वो देखो। सपोज मैंने लिया है suppose okay, I have taken here 1, this is 1, this is 1, okay, and these are all zeros, these are all zeros. Now see here, this is important, see here. आप जब सिंप्लीफाई करते हो ना तो आप है ना क्या 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 करो, आप इसके ऊपर भी डायरेक्ट 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे लिखा करो ताकि सिंप्लीफाई करने के लिए आसान हो जाए, ठीक है। अभी मुझे ग्रुप बनाना है, मेरे पास 3 1s है, 3 1s है, ये मेरे 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, इसका मतलब 2 to the power of 3 इज इक्वल्स टू 8, मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ वंस में बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 8 वंस नहीं है, ये रूल आउट हुआ, दिस इज रूल आउट, दिस इज रूल आउट, ओके। सो दिस इज रूल आउट, सो 8 के बाद फिर क्या, मैं प्रायोरिटी क्या है मेरी 4 की, तो यहाँ पे 4 का ग्रुप बन सकता था, लेकिन मेरे पास 3 ही वन है, तो ये भी रूल आउट हो गया। तो अभी क्या बाकी है 2 का, तो 2 का बन सकता है, ये देखो ये एक बन रहा है, ये 1 का मैं अलग से बना सकता हूँ, उसको लास्ट प्रायोरिटी दी है, लेकिन ये 1 अगर मैं इसमें मिलाता हूँ तो ये भी एक 2 का ग्रुप बन सकता है, पेयर बन सकता है, पेयर, ओके। हमेशा याद रखना 2 का ग्रुप पेयर, 4 का ग्रुप ऑक्टेट, और 8 का ग्रुप सॉरी 8 का ग्रुप ऑक्टेट, 4 का ग्रुप क्वाड, 4 का ग्रुप क्वाड, ठीक है ना। तो यस, कम टू दिस पॉइंट, सो पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, यस। अभी इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन कैसे लिखोगे, y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं, आप कौन सा भी लो पहला पेयर, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ। जब आप ये लेते हो तो आपके रो में ये 0 और ये 1 एक दूसरे को खा जाते हैं, दे विल ईट ईच अदर, दे विल नलिफाई, तो आपके वो टर्म में ए दिखेगा ही नहीं। बाद में आप जब कॉलम वाइज देखते हो तो कॉलम में ऊपर 0 और 1 है, ऊपर 0 और 1 है, 0 बोले तो क्या और 1 बोले तो क्या, एनी वन ऑफ यू, 0 बोले तो क्या, 1 बोले तो क्या, ए बार 0 में ए बार, नो, आप ये ऊपर B वाला bar ले रहे हो, C. यस इट शुड बी बी बार सी, यस यू आर राइट, इट शुड बी बी बार सी, क्योंकि ये 0 1 जो है वो ये वेरिएबल के लिए ले रहे हो ना, ये मैंने 0 0 लिखा, इसका मतलब बी बार सी बार, ये 0 1 है, इसका मतलब बी बार सी, ये 1 1 है, इसका मतलब बी सी, ये 1 0 है, इसका मतलब बी सी बार, तो आपका ये 0 1 है, दैट इज नथिंग बट बी बार सी, ओके। ये हो गया ये पेयर के बारे में। प्लस अभी ये जो पेयर बन रहा है, ये जो पेयर बन रहा है, इसमें अभी क्या होगा, अभी ये ध्यान से ए देखना, बार हाँ नहीं नहीं, अभी ये, हाँ ये अभी ये ध्यान से देखना, ये जब पेयर बनता है तब आपका जो रो वाइज देखते हैं तो आपका एक ही 0 है, तो आप वैसे के वैसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ए बार इज रिटर्न एज इट इज, a bar is written as it is, there is no problem. Now if you see properly, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अभी आपको रेस्पेक्टिव बिट्स को देखना है कि कौन किसको खाएगा, तो कोई मुझे बता सकता है कौन किसको खाएगा, 0 1 1 1, 0 1 1 1, कौन किसको खाएगा बताओ, कौन किसको खाएगा,
नो वन? सर 0 1 को खाएगा. यस, 0 1 को खाएगा. हमेशा एक बात रखना, 0 1 को खाएगा या फिर 1 0 को खाएगा. 0 0 को नहीं खाएगा, 1 1 को नहीं खाएगा. तो 0 1 को खाएगा या फिर 1 0 को खाएगा. तो ये 0 खाएगा ये 1 को. दे आर रेस्पेक्टिव पोजीशन. रेस्पेक्टिव पोजीशंस को भी हमको ध्यान में रखना है. ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है. ये सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है. तो ये 0 ये 1 को खा जाएगा. ये 1 को खाएगा क्या? नहीं खाएगा. तो 0 0 को नहीं खा सकता, 1 1 को नहीं खा सकता. 0 1 को खा सकता है, 1 0 को खा सकता है. तो ये 0 चला गया, ये 1 चला गया. You have left with this one. This one means what? This one means what? Tell me in the form of variable. This one means what? Yes? This one means what? BC. हाँ? क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई आपको. सर बीसी Yes. आएगा क्या? बीसी नहीं आएगा, बीसी नहीं आएगा. मैंने आपको क्या बोला? ये 0 ये 1 के साथ खा लिया. ये 1 के साथ नहीं खा सकता, तो सिर्फ 1 रहता है. एंड दैट दिस 1, so it will be equivalent to C. C. Yes, only C. ये देखो, ये 0 1 है ना, और ये 1 1 है. तो 0 1 बोले तो B बार C, और ये 1 1 बोले तो B C. Okay, so these B bar and C will cancel each other, and you have left with only one C. You have left with only one C. अभी याद रखो, ये B बार खा रहा है, इसका मतलब क्या है? B dot B bar. Tell me what is B bar? B dot B bar. Tell me what is B dot B bar. 0. Very good. Tell me C dot C. Tell me C dot C. 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 Very good. तो ये है उसका मतलब. खाना एक दूसरे को खाने का मतलब ये है. एक दूसरे को खाने का मतलब ये है. Variable dot its complement will give you 0. Variable dot with itself will give you that variable. So B dot B bar will give you 0. C dot C will give you C. तो वही खेल है. तो ये जब मैं ग्रुप बनाता हूँ ना, तो इसमें यहाँ पे तो कोई किसी को खाने वाला नहीं, क्योंकि एक ही 0 है. तो यहाँ पे मैंने A बार वैसे के लिखा. वो 0 था इसलिए A बार लिखा. लेकिन यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ तो ये 0 ये 1 को खा रहा है, यानी B टर्म चला गया, और ये जो 1 1 है दैट इज C. तो C आपका आ गया. तो फाइनल आंसर इज Y इज इक्वल्स टू B बार C प्लस A बार C. B बार C प्लस A बार C. I hope you have understood this. सबको समझ में आया? Yes sir. Okay, so before I wind up, I have covered the topics. I want you to please go through that. If you have any questions, you can ask me, and the remaining portion I will be taking after your test. Okay, so all the best for your test. Prepare module number 1, module number 2, and third module till KMAP, जो आज तक मैंने लिया है. Okay, and meanwhile कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो you can call me at any time. Okay, अटेंडेंस हो गई क्या? No, sir. ओके, आप मंत्री आप अटेंडेंस ले लो. जिन जिन का अटेंडेंस हो गया वो जा सकते हैं फटाफट. थैंक यू. और किसी को कुछ डाउट है तो रुक सकते हैं. Roll number 1, 3, Present.